লিখেছে এখানে ভাঙা পেন। আমার পেনে পুরো লেগে গেছে। পিঙ্কি, तस्नीम, निकी, निशांत, रोहन, आयुष। तुम्हारा लंबा एब्सेंट है मेरा। एक दिन हो गया, 2 दिन बहुत दिन, 3 दिन एब्सेंट है। एक वीक पूरा नहीं देखा। रोहित, इंटरनली तो नहीं है बस। मानव, तुम्हारा অনেকগুলো एब्सेंट है। संजना, अजय, प्रेजेंस, आशीष, रोहित, रोहित साव, कौन है रोहित साव? जीत दास, राकेश राम, शर्मिष्ठा, आकाश, खुशीत, संदीप, कौशिक, अनस, राहुल, ऋषि, सचिंदो। प्रियंका, सायन, रुबीना, जीत हालदार, जीत हालदार আছে रूपम, सत्या, शुभजीत, गुलशन, रोहित, टाटा डेली लेट सा, ऋतु, मोनी, शुभंकर, सुचरिता, गायत्री, সন্দীপ, অম্লান। অম্লানের কি হলো? চাকরি পেয়ে গেল নাকি? यस सर। কি হলো, তুমি আসছো না কেন? স্যার ভাই আমার ইন্টারভিউ করছে তো বাংলা করে, তো যেতে হচ্ছে। প্রীতম, आसिक, यस सर। कमल, यस सर। कमल कोথায়? অনলাইনে? यस सर। অভিজিৎ, यस सर। फैजान, प्रेजेंट सर। कृतिका, यस सर। मुस्कान, हिदायतुल्लाह, यस सर। रुद्र, प्रेजेंट, रफीक, सागर। अटेंडेंस চলো হয়ে গেছে লেখা। লাস্ট লাইন একদম तुम लिख नहीं रहे हो ये आयुष? ये लिख ही नहीं रहे। यहाँ तक तो तुम लोग कल पिक्चर ले लिए थे सर। हम लोग का पिक्चर लेखा लेखा है नहीं बड़ी लेखन सर पूरा पिक्चर हेजी आया था। হ্যাঁ डिलीट हो गया फोन से आवाज बैकअप ले সেটা বাড়িতে अभी 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 पाई नहीं था वन नंबर भेजा কতগুলো ফোন আছে তোমার? দুটো। অন্য ফোনটা কি অন্য কারো কাছে ছিল? সেই লোকটা বাড়িতে থাকে না? না ইমেল এর ফোনে পুরো আমার ফোনে আছে তো তাই না ওই ফোনে যেহেতু এ করা আছে তাই থাকে না। डन 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 हो गया। विथ मल्टीपल एजेंट। हाँ सर। फोने আছে
টার্মস, আই এম টার্মস কি নাম? প্রেজেন্ট দিলে তো অনলাইনে প্রেজেন্ট দিয়েছে তো? দাঁড়াও ওখানে। मल्टीपल एसेस স্যার এখান থেকে ফটো 5 क्वेश्चन पूछो, 5 क्वेश्चन। सर एक बार स्क्रॉल एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल किया क्या छोड़ दिया क्या स्क्रॉल करेंगे? ये वाला बाकी सर गुड न्यूज़ अरे वो लिखने का ये तो गुड न्यूज़ व्हाट आई ये नहीं लिखा सर না नो ये लिखने का जरूरत नहीं है, वो फ्री है बस इतना। अभी तक फ्री है, अब आगे चल के फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा कोई जानता है? लिख लोगे फिर पता चला कि फ्री हो जाएगा। बोल दी फ्री है कस्टमर मान शुभजीत दास, देखना है হয়ে গেছে चलो शुभजीत दास का प्रश्न करो। सर कहीं से भी हाँ। CYWS AWS, what do you mean by S3 bucket? पारबे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछो। What is IM? हाँ वो क्लास में था तो यार এটাও পারবে না? মনে করতে হবে। IM ফুল ফর্ম বলো। ফুল ফর্ম পারবে না? লাস্ট ক্লাসে করেছি। IM তো লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস হয়েছে। এই সায়ন প্রশ্ন করো। ये तो আমি পারবো স্যার। বলো। আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট। ফুল ফর্ম বলবে। না আমি ফুল ফর্ম তো সরি। হ্যাঁ, তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে BPC। BPC व्हाट इज BPC वो कुछ ऐसा है ফুল ফর্ম না ডেফিনেশন। হোয়াট ইজ বিপিসি মানে ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করছে না। যদি ফুল ফর্ম জিজ্ঞেস করতে তাহলে বলতো হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ বিপিসি। ইজ আস্কিং হোয়াট ইজ বিপিসি। তোমাকে দুটোই বলতে হবে, ফুল ফর্মও বলতে হবে তার ডেফিনেশনও বলতে হবে। ফুল ফর্ম ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড অ্যান্ড সুচরিতা প্রশ্ন করো। এমন লজ্জা পাচ্ছ যেন তোমার অন্য একটা ব্যাপার হচ্ছে। ফুল ফর্ম অফ EC2 এত ইজি কোশ্চেন। আবার পুরো ভুলে যাচ্ছি। আরে এক্সামে তো এইগুলোই আসবে। यस सर आप तो बोल रहे थे कि ऐसा ही था कुछ टाइप्स ऑफ EBS एक्सेप्ट फुल फ्रॉम नहीं सुन टाइप्स ऑफ EBS EBS এর ফুল ফর্ম বলো। ইলাস্টিক ব্লক স্টোর। ব্লক স্টোরেজ। সো হোয়াট ইজ EBS? মনে নেই। EBS এর তো আমরা EC2 ইনস্টেন্স বানাতে পারি না। इट्स এটা যদি না বলতে পারো তাহলে আর কি বলবো, কি আর বলবো। চলে এসো, পড়াশোনা কিচ্ছু করছো না। ভুলে যাচ্ছি স্যার। আরে বাবা এভাবে পড়ে লাভ নেই যে ভুলে যাবে, পড়ে লিখতে হবে। You have to write down without seeing the answer, then মনে থাকবে। अरे उधर ही बैठने दो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? बाबा क्रिया दुनिया में पूरा एडजस्टमेंट नहीं चल रहा है पूरा दिन। सामने बसो, सामने बसो, सामने। স্যার পেছনে সামনে বসো, পেছনে বসে কি হবে? সারা জীবন তো পেছনেই বসলে, এবার একটু সামনে আসো। সামনে সবাই চাকরি পেয়ে যাবে, পেছনে তুমি রয়ে যাবে একা। ভালো লাগবে তোমার? তাহলে
তুমি কি কম ফিস দিচ্ছ বাকিদের থেকে? বাকিরা বেশি দিচ্ছে? আজব কাজ। अजय की बेसी फीस दिच्छे? वो तो पूरा ही यूटिलाइज करते हैं सर एक टाइम में यहाँ अपना नोटपैड बना रहे हैं, यहाँ लिनक्स का मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ मतलब वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स का प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं मतलब मल्टीटास्किंग कंप्यूटर में ओवरलोड दे रहे हैं। उनके टाइम में जब आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे ना CP50 के ऊपर आता है उस दिन हम बोल रहे थे इतना मत कीजिए। कौन सा लैब में बैठता है? 7-1 कोई ठीक नहीं रहता। 7 में ज्यादा है। मशीन जहाँ खराब होगा तो अजय को ही पकड़ेंगे। फिर हम दिखा देंगे किस पे बैठे हैं। मीटिंग करके रखा है। वो इसको तो ये करना था, फोल्ड करना था ना। और बंधु আসবে না আজকে? বন্ধু আসবে? আসবে ও বাবা। হ্যাঁ আসবে। আসবে। ফোন করে জিজ্ঞেস করে। স্যার বলছি যে 372 তে আমাকে একটু অ্যাডমিন করে দিন না। 372 তে অ্যাডমিন তুমি না? আমি কি অ্যাডমিন আছি? হ্যাঁ আছেন। করে দিলাম। আচ্ছা ये बोलो তোমাদের বাড়ি নর্থ দিয়ে কাদের বাড়ি আছে? নর্থ के तरफ? नॉर्थ MG नॉर्थ मतलब कोलकाता नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वेस्ट में। ओह तुम्हारा कहाँ है? और किसी का है क्या? उधर में 2-3 वैकेंसी आया है। আমার বাড়ির পাশে मैं पाठिए দাও, अखिल राव तो पाठिए দিয়েছি। আমি যতটা পেরেছি ফাইল আপডেট করে দিয়েছি। দুটো ছেলে পাঠাইনি, ওই দুটো ছেলে বাদ দিয়ে দাও। দুটো ছেলের নাম বলে দিচ্ছি, রোহিত মাইতি ও রৌনক মাইতি, এরা দুজন কিছু পাঠাচ্ছি। আচ্ছা, তোমাকে 372 টা আছে, ওই করবো। অ্যাডমিন Make group admin. থ্যাংক ইউ স্যার। उधर में ना वैकेंसी आया है, जो कंफर्टेबल हो उस एरिया में बात कर सकते हो प्लेसमेंट से। सर बैरकपुर में क्या? उस तरफ ही है कहीं पे, एग्जैक्ट लोकेशन हमको नहीं पता। ये गुड। হ্যাঁ কি আছে? একটু স্কুল পয়েন্ট গুলো ABC কি হয়েছে ABCD? ABCD ঠিকই তো আছে। মানে ডাটা পর্যন্ত আছে তারপরে তাই হ্যাঁ ABCDEF তো হয়। এই অন্য কিছু ভাবছি। মানে ওই ডাটা পর্যন্ত আছে তারপরে ডাটা হয় না, ডেটা। ডাটা আবার কি? বাবা চশমা হারিয়ে গেছে তো ডাটা ডেটার সাথে কি সম্পর্ক? চশমা হারিয়ে গেছে? কোথায় হারিয়ে গেছে? আসতে কোথায় পড়ে নেশা ফেশা করে রাখো? সব রাস্তায় চশমা পড়ে যাচ্ছে তুমি বুঝতে পারছো না? আরে আমার চশমাটা খুব হালকা হয়তো পড়ে থাকলে পড়ে গেলে বুঝতে পারবো না যে না না চশমাটা পড়ে হাতে ছিল মানে ব্যাগের সাইডে লাগিয়ে রেখেছিলাম আমার কোথায় পড়ে গেছে তুমি পারবে।
রাস্তা যখন বেরোবে চশমাটা পরে নেবে। এই তুই মাথাটা নামা না। কি দরকার আছে ব্যাগে ঝোলানো? স্টাইল মারতে কি দরকার? না না পিকচার টুডে আমি খুলেছিলাম। হ্যাঁ রিল বানাচ্ছি জানি। না না হ্যাঁ আরে তুই মাথাটা নামা না রে চলে যা তুলছি যখন একটু তুমি नाटा सामने আসো ना। भाई सामने আমি बैठना zoom করে আছি अच्छा ठीक है थोड़ा सा नीचे हो जा वो थोड़ा सा हाइट तो सर सामने बैठना चाहिए না हाइट ফটোটা চক করে আর हाँ কিছু না उनका कैमरा देख रहे हो कितना बड़ा है? चश्मा का काम कर रहे थे জুম করতে ফটো ले তুমি তো দেখতেও পাবে না আজকে অতটাও এ না যায় একটু বড় বড় একটু একটু দেখতে পাচ্ছ পাশে নাম্বার জিজ্ঞেস করে উঠবে না স্যার ওটা দেখতে পেয়েছি স্যার দেখতে পেয়েছি তারপরে ये वाला इमेज भी ले लो इसका हो गया डन रिक्वेस्ट जूम तुम्हारा या मॉनिटर में जूम कैसे करोगे तुम फोन से जूम कर सकते हो হ্যাঁ ওটা পুরো हाँ? जूम नहीं हो रहा দুজনই ওখান থেকে डन हो गया अरे पिक्चर ले लो लिख घर में लिख लेना इतना बहुत सारा पॉइंट आईआईएम में बहुत थ्योरी है আচ্ছা একবার দিয়ে দিন না তুলে নিয়ে শুধু পাটা পাটা করে নিজে থেকে তুলছি थ्योरी लिखते लिखते क्लास खत्म हो जाएगा Yes, sir. স্ক্রল করে দিন না হ্যাঁ স্ক্রল করে দিন না ডিসকাস করতে হবে জিনিসটা নাহলে তো শুধু লিখতে হবে না জিনিসটা বুঝতে হবে তো বললাম স্ক্রল করে একটু ফটো আরে এত দূর তোলা দেখো না যখন স্যার বলবে তখন ছবি তুলবি दो नंबर से ना लिया আরে रिक्वेस्ट हो गया और तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन না করতে ভালো না না বল আরে তুলছি भेज दो ना मेरा कैमरा में क्लियर नहीं ওই তো है फिर एक्शन সব তুলেছি হ্যাঁ রে বাবা 5 नंबर तो ये तुमको शेयर करेगी না 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 স্যার তো পেয়ে যাবে ठीक है रिकॉर्डिंग में हो गया ले लिए हाँ सर एक्शन না না স্যার क्या তুলছিলাম তো सर के ऊपर से एक ग्रुप में चढ़ेगा। भेज देगा रुद्र फोटो ले लिए হয়ে গেছে হ্যাঁ সবথেকে প্রবলেম অ্যাকশন তারপর এটা হচ্ছে অ্যাকশন কিন্তু হ্যাঁ মানে এই 5 নম্বর পয়েंट এটা सर पॉइंट पॉइंट लिखा दीजिए ये एक्शन है हाँ? ये एक्शन में समझ में आ आएगा रहा है ना यस यस ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट जो है नंबर 6 वो है रिसोर्स सर इनलाइन पॉलिसी डिफरेंट है क्या স্যার অ্যাক্সেসটাকে তুলে দিন না एक साथ ही ले लीजिए सर 6 से लेकर के पूरा ही ले लेंगे एक बार में आ जाएगा नहीं यार इसमें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पहले 6 ले ले उसके बाद ये लाइन पॉलिसी ले ले 6 लिए ले ले रहे सर जी उतार एक्शन सर 6 और थोड़ा सा स्लो सर 6 वाला 6 वाला ছয়টা হয়নি रिसोर्स इनलाइन पॉलिसी का सर 5 नंबर के बाद वाला 6 वेरी गुड सब ले लिए सब पॉइंट्स इजीली नोट कर लिए AWS बाय डिफॉल्ट वो तो है इनलाइन पॉलिसी ये आपका स्टेप्स है कैसे करना है এটা খুললে কি হবে ठीक है ये स्टेप्स चेंज भी हो सकता है नया वाला कंसोल में चेंजेस किया है कुछ अच्छा हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे ये जरा सा हम लोग देख लेते हैं सर ऑथेंटिकेट हाँ? ऑथेंटिकेशन सर इसमें इसी में ऑथेंटिकेशन MFA MFA हो गया था क्या ये हाँ सर बता दीजिए सर लिमिट्स ऑफ IAM सर्विस का यहाँ तक हो चुका था सर IAM फीचर्स हो गया था नहीं फीचर में सर MFA तक डिस्कस कर दिए थे तब 27 हो रहा है
कहाँ से होगा? आइडेंटिफाई फेडरेशन, नंबर 2 आइडेंटिटी है वो। आइडेंटिटी सॉरी, हाँ फेडरेशन। हाँ, सो नंबर 5 से होगा। तो बाकी ऊपर का पॉइंट जो डिस्कस हुआ वहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? ये जो सर अब एग्जांपल नहीं दिए हैं, ये डायनामो डीबी, ये सर समझ में नहीं आया मेरे डेटाबेस है ये क्या, हम लोग कैसे बाद में database? पढ़ेंगे इसको। हाँ, अभी अभी RDS पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ये सब एक तरह का रिसोर्सेस है, जैसे S3 बकेट है ना, उस तरह से ये भी हमारा रिसोर्सेज है। हाँ, स्टोरेज नहीं है, ये डिफरेंट तरह का रिसोर्स है जिसको अलग काम के लिए यूज़ करेंगे। S3 को हम लोग स्टोर के यूज़ करते थे, बट ये स्टोर के लिए ये नहीं। सब कहाँ यूज होगा? जब हम लोग सीखेंगे तब बात करेंगे क्या पे यूज़ करेंगे, अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं सर सही है, थोड़ा सा elaboration दीजिए। सो MFA हो गया था, है ना? यस सर। अच्छा, आइडेंटिटी फेडरेशन ये यहाँ से करेंगे ना? हाँ सर। सो आइडेंटिटी फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब कोई थर्ड पार्टी कोई एप्स नहीं, फेडरेशन मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? डिक्शनरी में अगर इस वर्ड को मीनिंग ढूंढते तो क्या आता है? फेडरेशन तो संघ ना, संघ। जैसे फेडरेशन वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन, हाँ नाटो है, ये भी तो एक फेडरेशन और संघ हाँ। तो फेडरेशन मतलब होता है, सिंपल सा बात है, जहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट तरह का लोग आपस में, डिफरेंट तरह का टीम आपस में जब मिलता है उसको हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। डिफरेंट कंपनीज जब आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो वो फेडरेशन कहलाता है ना? जैसे कोई टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का, तो वो टूर्नामेंट में डिफरेंट कंट्रीज का प्लेयर खेलते हैं, तो एक तरह का वो फेडरेशन होता है। IPL हाँ, तो यहाँ पे भी सेम है कि ऐसा सिनारियो समझ लो कि है कि आपका AWS का रिसोर्स को सिर्फ AWS का यूज़र नहीं, मतलब मैं IAM से यूज़र बना रहा हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी काम करता है वो यूज़र्स, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यूज़र्स जो है वो पहले से कोई एक्टिव डायरेक्टरी में हो, मेरा डोमेन चलता हो, वहाँ पे यूज़र्स पहले से हो, तो मुझे क्या फिर से दोबारा यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा AWS में? तो AWS बोलता है कि नहीं, क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, आप उसी यूज़र को साइन इन करवा सकते हो AWS में, लेकिन आपको इसके लिए फेडरेशन सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे हम लोग कभी आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स जब लॉगिन करते हो कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे बोलता है जीमेल से आप एक्सेस कर सकते हो, जीमेल का आपका अकाउंट से एक्सेस कर सकते एग्जांपल दिए हो, तो वो फेडरेशन हो गया ना, कि वो कंपनी क्या किया, जीमेल को ट्रस्ट कर रहा है, तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड से आप एक्सेस कर सकते हो मेरे रिसोर्स को। तो क्या हुआ, दो अलग डोमेन है। हाँ सर एकदम, कैनवा एक अलग डोमेन है, हम लोग डिफरेंट, बट ट्रस्ट ही उसका जो है जीमेल है जिसमें वो ट्रस्ट कर रहा है, डिफरेंट है ना, तो कर रहा है। क्लासरूम भी है सर। तो इस तरह से हम लोग फेडरेशन करवा सकते हैं AWS में भी, इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो इस सर्विस को बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी फेडरेशन। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? ये क्या होता है? हाँ सर कंसेप्ट क्लियर है? नाउ सो अब एक एक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? You can allow a user who already has password elsewhere to get temporary access to the AWS account. Temporary access to AWS account. Hmm. On Canva login with HTTP get create and trust between the multiple corporates so that using dependency of one account we can बोलो access फर्स्ट पॉइंट के की पूछते बार से समझ में तो आ रहा है। हाँ अलाउ कर सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी पासवर्ड है elsewhere to get temporary access to the AWS account. अदरवाइज उसको टेम्पररी एक्सेस मिलेगा AWS अकाउंट। तो किसी के पास यूज़र नेम पासवर्ड है किसी डिफरेंट डोमेन का, AWS का नहीं है, जैसे किसी का जीमेल का पासवर्ड है, याहू का है अकाउंट, या फिर खुद का ओन एक्टिव डायरेक्टरी का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो
तो मैं फेडरेशन सर्विस से AWS में उसको लॉगिन दे सकता हूँ। Without उसके लिए मैं any account. हाँ, उसके लिए मुझे अलग से उस यूज़र के लिए यूज़र क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। मेरे रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है एज पर और लाइक परमिशंस, जो परमिशन मैं उसको दूँ। जैसे ऐसा मेरे पास 4 यूज़र है जो इस डोमेन में है, या थर्ड पार्टी वेंडर है जो मेरे रिसोर्स को एक्सेस करता है। ऐसा होता है ना, कंपनी डिफरेंट कंपनीज को AMC प्रोवाइड करता है ना, सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट टीम अलग होता है डिफरेंट कंपनी का। हाँ सर, हाँ जैसे ITC का माइक्रोसेंस है यहाँ पे। तो इस तरह का वो लोग अलाउ कर सकता है अगर AWS चाहे तो डिवाइसेस, है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कैनवा में हम लोग लॉगिन करते हैं यूजिंग जीमेल। कैनवा में हम चाहें तो आईडी बना सकते हैं या फिर मैं जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकता हूँ डायरेक्टली, मुझे साइन अप करने का जरूरत नहीं है। AWS में भी ऐसा होता है, AWS में भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट है, वी कैन क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन मल्टीपल कॉर्पोरेट्स सो दैट यूजिंग क्रेडेंशियल्स ऑफ वन अकाउंट वी कैन एक्सेस टू अदर AWS। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फेडरेशन मतलब ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। मतलब यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट, AWS को बताना पड़ेगा कि ये मेरा ट्रस्टेड वेंडर है, मतलब सर ये आइडेंटिटी फेडरेशन मतलब एक प्रैक्टिकल है इसका। ठीक है, तभी वो आपको एक्सेस करने के लिए देगा। AWS बाय डिफॉल्ट नहीं देता है, लेकिन मैं अगर करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये फीचर अवेलेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फॉर एश्योरेंस। ठीक है, तो क्लाउडट्रेल एक तरह का सर्विस है जो AWS में है, जहाँ पे जो लॉग्स होते हैं जिसको हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। मॉनिटरिंग मतलब क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है सिस्टम में, क्या लॉग्स जनरेट हो रहा है, कौन यूज़र क्या कर रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है मॉनिटरिंग, क्या एक्शन कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है, तो वो सारा कुछ का लॉग्स एक क्लाउडट्रेल रखता है अपने पास। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। If we use AWS CloudTrail, we can receive log reports that includes information about those who made request for resources in our AWS account. तो मैं ट्रैकिंग अगर करना चाहता हूँ कि कौन सा यूज़र क्या क्या एक्सेस कर रहा है या फिर एक्सेस करने का रिक्वेस्ट किया है। हो सकता है ना कि मुझे नहीं पता, मैं तो फेडरेशन कर दिया, अब यूज़र गलत काम भी कर सकता है, तो मैं ट्रैकिंग कैसे करूँगा कौन सा यूज़र क्या कर रहा है। तो ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पे अलग सर्विस है AWS में, दैट इज कॉल्ड क्लाउडट्रेल। ठीक है, जिसमें सारा लॉग्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, अभी सुचरिता कल दिन भर क्या क्या की है उसका लॉग अगर कहीं पे मैं रख दूँ तो मैं उस लॉग से देख सकता हूँ कि हाँ सुचरिता इस डेट में इस टाइम में कहाँ थी, क्या की है, उसका डाटाबेस क्रिएट है ना। जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन के पास सारा डेटा होता है। यस सर, टिकटिंग टूल यूज होता है उस तरह से। टिकटिंग टूल अलग चीज़ है, वो तो टिकटिंग टूल को हम लोग जब टिकट जनरेट करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है कि आपका सिस्टम में कुछ इशू आया है, यू हैव टू क्रिएट रिकॉर्ड रहता है ना सर, बट यू हैव टू क्रिएट अ टिकट ना, देन इट विल ट्रैक्ट। बट यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्लाउडट्रेल का काम ही यही है, उसका फीचर यही है कि वो ट्रैक रखेगा हर चीज़ का, ये लॉग जनरेट करेगा। जैसे सिस एडमिन का काम होता है या सिस प्रेप का काम होता है। है ना, तुम लोग सिस लॉग पढ़े होंगे CCNA वगैरह। अच्छा, थर्ड है कि स्टैंडर्ड के बारे में बताया जा रहा है, PCI DSS कंप्लायंस। सो PCI DSS एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि आप जब कार्ड से पेमेंट करते हो तो क्या क्या सिक्योरिटी डिफाइंड होना चाहिए, वो रेगुलेशन वो रूल आप फॉलो कर रहे हो नहीं। तो जो भी हम लोग कार्ड पेमेंट यूज़ करते हैं, वो SBI का कार्ड हो, HDFC का कार्ड हो, सारा बैंक्स PCI DSS को फॉलो करता है।
तो वहाँ पे देखना PCI DSS का लोगो भी आता है जब मैं कोई कार्ड पेमेंट करता हूँ। जैसे मैं अपना पेमेंट कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट में कार्ड से, तो वहाँ पे देखना एक PCI DSS का जब पेमेंट करते हो तो लोगो आता है, इसका मतलब ये ट्रस्टेड है। PCI DSS फ्लिपकार्ट को ट्रस्ट कर रहा है कि फ्लिपकार्ट मेंटेनिंग ऑल द सिक्योरिटी एंड अप्लायंसेस। तो जहाँ पे PCI DSS का सिंबल नहीं आता है, लोगो नहीं आता है, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड, तो हो सकता है कि फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। सिक्योरिटी ब्रीच। लोगो कैसा होता है? ध्यान नहीं दिए हो, देखे तो हो लेकिन हम लोग ध्यान देते नहीं है, क्योंकि हम लोग का फोकस तो दूसरी तरफ रहता है। पेमेंट कर दिया, सामान मिल गया, बस सामान। PCI DSS का लोगो कैसा होता है? ऐसा वाला लोगो आता है, कहीं कहीं पे ऐसा वाला लोगो आता है, ऐसा वाला लोगो आता है। ठीक है सर, मेरा परसों ही ऑर्डर आने वाला है, तो ऑनलाइन। अभी तुम अगर AWS में बिल पेड किए हो क्या? हाँ सर, इसमें ऐसा लोगो नहीं आया, ऐसा लोगो नहीं आया होगा, ध्यान नहीं दिए। Amazon पे से कभी पेमेंट किए हो? तुम्हारे जीपे से कभी पेमेंट किए हो? यस सर। फोन पे से कभी पेमेंट किए हो? तो उसमें ये लोगो आएगा ही जब पेमेंट करते हैं किसी थर्ड पार्टी को। नहीं না না वो तो ये ওটা তো তুমি ট্রানজ্যাকশন করছো, তোমার কাউকে টাকা পাঠাচ্ছো বলে। এই লোগোটা কখন আসবে? তুমি যখন কোনো ভেন্ডরকে পে করবে, you are paying someone, that is company। আমি তোমাকে টাকা পাঠালাম, তাহলে থোড়ি না PCI DSS আসবে। समझ गए सर? समझ गए? ट्रांजेक्शन को पे करने के बाद हाँ ठीक है, क्लियर? तो PCI DSS का फुल फॉर्म क्या है? अगर कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे? PCI का फुल फॉर्म है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्रीज, और DSS का फुल फॉर्म है डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। So it is a guideline for online transactions. So IAM supports the processing, storage and transmission of credit card by merchant or service provider and has been validated as being compliant with the PCI DSS. So आप जो पेमेंट करते हो AWS में, आप AWS का जो बिल पेमेंट करते हो सारा आप देखोगे PCI DSS ही वहाँ पे एनेबल है और वो ट्रस्टेड है। PCI DSS को स्टैंडर्ड को गाइडलाइन को AWS फॉलो करता है, हर रूल को फॉलो करता है। मतलब ये रूल की तरह इम्प्लीमेंट गाइडलाइन है, गाइडलाइन। हाँ, क्या क्या यूज करना चाहिए। RBI फॉर सिक्योरिटी RBI सर जैसे मनी को गाइड करता है, इसी तरह ये कार्ड RBI वो तो भाई डिफरेंट थिंग। RBI is different thing. RBI is only for banking sites, banking transactions and financial things. So RBI का कुछ guidelines है। RBI is not a like standard, it's a one type of organization. But I am talking about the standard. हाँ, इसको maintain कोई organization कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये standard है PCI DSS। ऐसे काफी सारे standards है, जैसे HIPAA is a standard, और ये HIPAA यूज होता है तुम्हारा जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज काम करते हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में काम होता है, वहाँ पे जो सर हम सुने हम हॉस्पिटल HIPAA के बारे में, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है सारा हॉस्पिटल्स को या इंश्योरेंस सेक्टर्स को। इस तरह से हर कार्ड पेमेंट वाला सिस्टम जहाँ पे है उसको PCI DSS को फॉलो करना पड़ता है, जो भी कार्ड यूज करते हैं, वो भी डेबिट कार्ड हो या फिर वो क्रेडिट कार्ड हो। क्लियर? सो ये AWS इसको इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, ठीक है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअली ये सब क्या बात हो रहा है ना, यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये जो फीचर्स है IAM फीचर्स, तो ये सब फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये हमारा IAM के अंदर है ये फीचर, ठीक है। सो ये लास्ट फीचर है दैट इज इवेंचुअली कंसिस्टेंट। और इसका मतलब क्या होता है? सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर
अभी इस पॉइंट को पूरा पॉइंट को हमारे लिए ये क्या नाम है आयुष पढ़े के सुनाई क्या है ये आयुष और इसका मतलब क्या है कॉफी दे दे इवेंचुअली कंसिस्टेंट कुछ नहीं कर रहा वो सो रहा है मैं तो काफी देर से उसको देख रहा हूँ उसका पिक्चर भी नहीं है वो फोटो भी नहीं लिया किसी उसका दिल टूट गया अब जी के क्या करेगा हाँ कुछ भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करे इसका मतलब क्या है हाँ मन ठीक नहीं है मन कुछ अंदर से अच्छा नहीं है क्यों यार क्या गिरा है दो तार कर रहे माउस ओ आउटले चार्जिंग लगा Eventually consistent. If a request to change some data is successful, that change is committed and safely stored. However, the change must be replicated across all IAM services, which can take some time. IAM achieve the high availability by replicating data across multiple servers with multiple agent and region. अरे बोलो क्या समझ में आया पढ़ के तो कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है वो सब मत सोचो तुमको जो समझ में आया वो बोलो देन वी कैन डिस्कस जब आप सीख रहे हो ना तो नथिंग इज रॉन्ग है कुछ भी गलत नहीं है जो भी आप बोलोगे बिकॉज आप अभी लर्निंग स्टेज में हो जब सीख जाओगे उसके बाद बोलोगे गलत तो गलत है तो अभी खुल के बोल सकते हो जो समझ में आया है उसके बाद में हम लोग फिर बात करेंगे इसके बारे में डेटा जो है रेप्लिकेट में चेंज अपडेट करते हैं तो वो कहीं जाके एक जगह स्टोर हो जाता है सर अभी कमिटेड यस वहाँ चेंज इज कमिटेड मुझे ना একটা কমিটমেন্ট নিলে এখন যে এই এক্সামে পাস করবই you are committed to pass the exam আর যদি ফেল করো बात তাহলে से দেখা सफर যাবে मैं दे रहा बात पता भी है request to change अरे बोलो कुछ तो डर क्यों रहे हो हम लोग थोड़ी ना शेर इधर लकड़बग्गा बैठा है इधर शेर बैठा है ये लोमड़ी ऐसे थोड़ी ना बैठा है कि तुम बोलोगे खा लेंगे हम तुमको बोलो तुम खुल के बोलो ना क्या दिक्कत है जो समझ में आया तुमको बोलो पढ़ के समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा ना ऐसे थोड़ी ना कुछ भी समझ में नहीं आया एक लाइन पढ़ लो उसके बाद बोल सर समझ में नहीं आया अरे ऐसे कैसे हो सकता है अच्छा ये वाला लाइन पढ़ के क्या समझ में आया चलो मैं पूरा चीज नहीं मैं एक लाइन ही चलो करता हूँ ये वाला यहाँ तक क्या समझ में आया request to change some data
कॉमन फीचर है हर मशीन का, हर सिस्टम का ये फीचर है, ये होना चाहिए, अदरवाइज तो टेक के साथ कुछ भी हो सकता है। मोबाइल में भी है ये सर्विस, नहीं तो डिवाइस में हम ट्रस्ट ही कभी नहीं करेंगे, ऐसा फीचर नहीं रहेगा। अच्छा तो समझ लो तुम्हारा फोन है, ठीक है, फोन में तुम नया वाला कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए और इंस्टॉल किए, तो वो फोन उसको इंस्टॉल करेगा या नहीं करेगा? तो करेगा, और जब तक तुम रिमूव नहीं करते हो तब तक वो फोन में रहेगा कि अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर ये फीचर है तो ये पहला लाइन ये फुलफिल कर रहा है। क्या बोल रहा है पहला लाइन में? क्या वही तो बोला जा रहा है कि जो भी चेंजेस हम करेंगे वो उसको सक्सेसफुली रखेगा, बट हो सकता है कि थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगे, बिकॉज AWS का मल्टीपल डेटा सेंटर्स है, मल्टीपल रीजन्स है, मल्टीपल एबिलिटी जोन है, तो थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगे, लेकिन ये आपका सेफली चेंज होगा, ये कमिटेड है, ये AWS कमिटमेंट दे रहा है। कैसा ट्रू कोड है, कुछ दिखाता ही नहीं। हेलो, ये कमिटेड नहीं था। हाँ एज़्योर है 22 से 500 टका ही है। दोनों साइड से देखना चाहिए। सॉल्ट तो एक ही है, 22 से 500 सब चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्ट नहीं है बट ये इंक्रीज वे में ही रहता है ट्रू कॉलर ना। मॉड्यूलर कोड से कोई प्लेसमेंट गारंटी, मॉड्यूलर कोड से कोई प्लेसमेंट गारंटी नहीं है। হ্যাঁ এমএনএতে আছে, এমএনএ যা করেছিল এমএনএর উপরে প্লেসমেন্ট গ্যারান্টি ছিল, তাই না? এখন তুমি যদি কোনো আলাদা কোর্স করো, তাহলে যে আমি এজিওর করছি বলে এজিওরের উপরে চাকরি দেবে, যে যেরকম কোনো কমিটমেন্ট। हाँ मैम मेरा भी होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, वो अपने आप से बहुत नहीं मैम डाइट लाइट करेंगे भी तो खाएगी हम करते हैं पता है कुछ मैम, हम भी डाइट किए। আরে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে বলছি রি-এক্সাম ফিসটা আলোক কুমারের অনলাইন করে দিচ্ছি, তো রিসিপ্টটা তো পাবে না, তো আসেনি। রিসিপ্ট লাগবে কি না স্ক্রিনশট দেখালেই হবে? রিসিপ্ট তো একবার জেনারেট করবে না, অনলাইন দিয়ে দেবে স্যার? ओके हम देव जी अपना मोबाइल को रेप्लिकेटेड कर रहे हैं। जो चेंज होगा However, the change must be replicated across all IAM services. जितना सारा IAM services चल रहा है सब में रेप्लिकेट होगा। फॉर एग्जांपल लाइक तुम किसी यूजर का रोल चेंज कर दिए, या कोई पॉलिसी चेंज कर दिए, या परमिशंस चेंज कर दिए, तो वो चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, बट ये रेप्लिकेट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, बिकॉज इस IAM सर्विस में पूरा ये रेप्लिकेट होगा। IAM सर्विस जब चलता है तो किसी रीजन स्पेसिफिक नहीं चलता, ये ग्लोबली होता है, तो टाइम लगता है कि जो यूजर आप बनाओगे ना, तो वो यूजर कोई रीजन में नहीं बनेगा, वो आपका अकाउंट में बनेगा, और वो अकाउंट जैसे सब रीजन में जा सकता है, वो यूजर भी सब रीजन में जा सकता है। क्लियर? ये ग्लोबली होगा। IAM achieves this high availability by replicating data across multiple servers with multiple agent and resources. यस, और ये मल्टीपल सर्वर्स के पास अपडेट रहेगा, मतलब एक सर्वर के पास ही सिर्फ डेटा स्टोर नहीं होगा, इसका रेप्लिकेशन, इसका कॉपी जो है वो मल्टीपल सर्वर्स के पास हो जाएगा। प्रैक्टिकल करने में बहुत अच्छा लगेगा सर। अभी ये इतना सारा PCI, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ये कमिटेड कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, और आपका इवेंचुअली है। इवेंचुअली इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगता है, फटाफट तुरंत नहीं हो जाएगा। आप कोई यूजर डिलीट कर दिए, तुरंत डिलीट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मतलब हो सकता है 30 सेकंड 40 सेकंड टाइम लगेगा, जैसे फोन का क्योंकि वो सब डेटा सेंटर से उसको रिमूव करेगा। क्लियर? जहाँ आप उसका कॉपी Easy to instance.
IAM के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नहीं सर, टर्मिनेट करने पर वो भी थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, टाइम तो लगता है। हाँ, नाउ नेक्स्ट बैठ जाओ। नेक्स्ट है IAM टर्म्स। IAM के अंदर क्या क्या टर्म्स है जो आपको जानना पड़ेगा। विदाउट knowing these terms you are not able to understand what is IAM। तो यहाँ पे अगर टर्म्स में देखा तो टर्म्स यहाँ पे 6 लिखा है, प्रिंटेड है 1 2 3 4 करके। प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट है, रिसोर्स है ना, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है और फिर एक्शन या ऑपरेशंस है। तो ये 6 टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर ऑल टोटली कंसेप्चुअल। यहाँ पे रटने वाला कोई चीज है ही नहीं। एक यूजर मैं बनाता हूँ अगर, तो यूजर कैसे काम करता है, यूजर को किस तरह से AWS हैंडल करता है, वो प्रिंसिपल है ना। ये सब प्रिंसिपल जो है नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे काम करता है। तो ये 6 टर्म्स है जिसको AWS यूज करता है अलग अलग। अगर कोई पूछे कि हाउ IAM works in AWS, so it works in 6 steps। ठीक है, 6 steps में ये काम करता है। तो क्या क्या है? पहला है प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अभी सुचरिता बताएगी फर्स्ट पॉइंट। It is a personal application that can make a request for and actions or operations on a AWS resources. प्रिंसिपल यहाँ पे कौन हो सकता है? प्रिंसिपल यहाँ पे यूजर हो सकता है या फिर कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे S3 बकेट आप बनाए हो और चाहते हो कि S3 बकेट को EC2 इंस्टेंस यूज करें, तो इस केस में EC2 इंस्टेंस प्रिंसिपल है। कोई API भी हो सकता है, कोई यूजर भी हो सकता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये यूजर EC2 इंस्टेंस को यूज करे, यहाँ प्रिंसिपल यहाँ पे अभी यूजर है। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो कौन है? प्रिंसिपल। ओके, एक्शन और ऑपरेशंस की हाँ AWS रिसोर्सेज पर। ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या है? ये क्या समझ में आया इससे? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव IAM यूजर है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है हाँ इन दिस केस। हाँ, Administrative तो जो आप यूजर बनाओगे, क्रिएट करोगे और उसको एडमिन एक्सेस मिलेगा, एडमिन प्रिविलेज मिलेगा, क्योंकि वो आप एक्सेस दे रहे हो उसको, तो वो पहला ही प्रिंसिपल होगा, है ना। We can allow users and services to assume a role। तो मैं अगर चाहूँ तो प्रिंसिपल को रोल भी असाइन कर सकता हूँ कि वो क्या बनेगा। हाँ, नहीं क्या बनेगा, क्या करेगा वो तो परमिशन है। रोल मतलब होता है क्या बनेगा। तो पुलिस बनोगे, पुलिस रोल ये तुम्हारा रोल है। तुम चोर पकड़ोगे ये तुम्हारा कार्य है। हाँ? बनोगे या विलेन बनोगे ये रोल। तो ये रोल मैं असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं, একদম আমি সেটাই example দিতে পারি user is a principal may some cases, but some cases resources could be a principal। S3 bucket भी principal हो सकता है। If S3 bucket is accessing something, a request to access something, जैसे S3 bucket चाहता है कि RDS को access करना, database को, तो database को access करने का request कर रहा है S3 bucket। On that moment इस मोमेंट में S3 bucket ही principal प्रिंसिपल है। यस, जो रिक्वेस्ट करेगा वो कौन है? प्रिंसिपल कहलाएगा। जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्ट वर्ब ये वगैरह। यस सर। हाँ, ठीक है। So IAM users, roles, federated users, applications are all AWS principal। यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट में सारा एग्जांपल है प्रिंसिपल का। IAM user, roles, federated users and application are all AWS। ठीक है, तो एप्लीकेशन API भी हो सकता है कोई प्रिंसिपल हो,
जैसे मैं बताया आपको एग्जांपल के तौर पे, आई एम यूजर वो यूजर है जो यूजर आप क्रिएट करोगे। तो S3 यहाँ पे मतलब रोल के थ्रू डेडिकेट हो रहा है ना? S3 रोल भी हो सकता है कोई प्रिंसिपल, जैसे एक रोल आप जनरेट किए हो, वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक रोल है, समझ लो कि ये रोल है S3 एडमिन, तो ये रोल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये रोल S3 बकेट में उसको फुल परमिशन मिला है ना। तो S3 एडमिन जो रोल है वो मैं रोल पहना दिया किसको, रुद्रो को पहन लिया। अब ये क्या बन गया, S3 एडमिन। तो ये रोल मैं किसी को भी दे सकता हूँ, मल्टीपल यूजर्स को भी दे सकता हूँ। तो ये रोल भी बन सकता है प्रिंसिपल, क्योंकि वो S3 पैकेट को एक्सेस करेगा, रिक्वेस्ट करेगा एक्सेस करने। एक्चुअली रोल्स रिलेटेड ही कोई एग्जांपल चाहिए था। না রোল মানে হচ্ছে তুমি কি রোল দিচ্ছ তাকে, তোমার রোল এখন কি, বাইরে বেরোলে তুমি স্টুডেন্ট না, তখন দিদিমণি হয়ে যাবে। দিদিমণি তো তোমার যে রোলটা আছে এখন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমার যা যা কি বলে ওটাকে, হ্যাঁ করণীয়, সেগুলোই করবে তুমি, ठीक है। सेम केस है, मेरा भी जो रोल है ये 2 घंटे में वो एज ए ट्रेनर है, तो मैं ट्रेनर हिसाब से अपना रोल को यहाँ पे निभा रहा हूँ, लेकिन ये 2 घंटा निकल जाएगा, उसके बाद मैं कुछ और करूँगा स्टडी, वो अलग बात है, मेरा ट्रेनर रोल नहीं रहेगा, रोल बदल जाएगा, ठीक है। तो सेंटर रोल पे आ जाएगा। हाँ सेंटर रोल पे आ जाएगा कि चेयर ठीक है या नहीं, स्टूडेंट ठीक है कि नहीं, चल रहा है या नहीं, ये सब सभी कुछ करेगा, तो रोल चेंज हो जाएगा। ये सब रोल है ना, तो इस तरह का रोल आप क्रिएट कर सकते हो, अगर रोल असाइन कर सकते हो। रिक्वेस्ट मतलब AWS में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि सिर्फ परमिशन या पॉलिसी नहीं, आप रोल भी जनरेट करवा सकते हो, समझ में आया? जैसे आई एम यूजर है ना, अब आई एम यूजर को फुल परमिशन दे दो, वो तो रूट यूजर की तरह सारा एक्सेस मिल जाएगा उसको। IAM को एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे रहा यही तो दे रहा है, AWS तो यही बोल रहा है कि आप आई एम यूजर यूज करो, डोंट यूज रूट यूजर, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। क्योंकि रूट यूजर का एक्सेस किसी के पास अगर चला गया, इसका पासवर्ड लीक हो गया, तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप विंडोज 11 यूज किए हो क्या? यस सर। तो विंडोज 11 जब आप लॉगिन करते हो तो किससे लॉगिन करते हो, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हो? नहीं सर, एक यूजर बना रहता है। क्यों, कभी इंस्टॉल किया विंडोज 11? विंडोज 10 कभी इंस्टॉल किया? यस सर। वहाँ पे यूजर बनाना पड़ता है? हाँ सर, एक क्यों? Why we are not using administrator? एडमिनिस्ट्रेटर तो यूजर उसमें है। हाँ सर, वो ऑलरेडी क्यों यूज नहीं करते हैं? सर माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफॉल्ट खुद ही परमिशन डिनाइड करता है। XP तक था एडमिनिस्ट्रेटर, आप XP जब यूज करते थे तो वहाँ पे यूजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता था, एडमिनिस्ट्रेटर ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता था। यस बट विंडोज 10 से ये विंडोज 8 से बोल सकते हैं बंद कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट इसको बंद कर दिया फीचर। क्यों बंद कर दिया? बिकॉज वो पावर यूजर है। अगर आपको सभी मतलब लॉगिन एक्सेस आप पावर यूजर को दे देते हो, तो पावर यूजर एक्टिव होता है, तो अगर किसी मशीन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए तो उस हैकर को या फिर उस अटैकर को पावर यूजर का एक्सेस मिल जाएगा, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि रूट यूजर वही पावर यूजर है। यहाँ पे आप डेली टास्क पावर यूजर से मत करो, आपको अगर टास्क करना है तो यू कैन क्रिएट अ आई एम यूजर एंड गिव हिम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, he can do the task. Clear? अच्छा ये पता है ना आप लोगों को कि अभी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, गेस्ट अकाउंट बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है विंडोज में। तो mgr.msc जाकर के करते हैं। इनेबल करना पड़ता है वो जानो यस सर, ये पता है, ये तो की है बहुत बढ़िया। तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, क्यों डिसेबल होता है ये शायद नहीं जानते। हो सकता है ना, सवाल नहीं आ रहा दिमाग में क्यों डिसेबल है भाई? तो सही बोले सर, ये बात सही है सर, क्यों है सर बोल तो ये भी जान लेते हैं। अच्छा वो
तो Number- ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन उसके बाद ही दिखता नहीं हाँ. है एडमिनिस्ट्रेटर Number 5 है we can support federated users or programmatic access to allow an application to access our AWS account. So ये सपोर्ट करता है कि आप अगर कोई बाहर का यूजर, फेडरेटेड यूजर मतलब AWS अकाउंट IAM यूजर नहीं है, ये बाहर के यूजर बाहर के user। उसको अगर आप देना चाहते हो कि वो AWS CLI से एक्सेस करेगा, प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए उसको, API के थ्रू से एक्सेस करे, वो देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये AWS आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट जनरेट करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल में जाकर। স্যার So- ফেডারেটেড মানে কি বলা যায়? ফেডারেটেড মানে হচ্ছে এটা अदर्स फ्रॉम आउटसाइड। কোথায় গেল? और फीडो का मतलब सर? फीडो की फीडो की मैजिक की है। फीडो का फुल फॉर्म एक बार देख लो क्या है। फीडो फीडो अच्छा, सेकंड जो टर्म है व्हाट इज दिस? रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट मतलब प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है, एक्सेस करने का ट्राई करता है। यू आर प्रिंसिपल, यू आर IAM यूजर एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस EC2 इंस्टेंस, सो यू आर रिक्वेस्टिंग। इसका मतलब रिक्वेस्ट जा रहा है AWS के पास, है ना। सो AWS क्या करेगा? AWS विल चेक कि आपके पास वो परमिशन है या नहीं, है ना, तभी वो एक्सेस आपको देगा करने के लिए। सो ये प्रिंसिपल tries to use the AWS management console, the AWS API or AWS CLI, that principal sends a request to AWS. Okay, and the request includes the following informations like action, principal, resource, environment and data. तो रिक्वेस्ट में ये सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अदरवाइज AWS आप डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या एक्सेस देगा या नहीं देगा। API मतलब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड तुम्हारा एक्सेस होता है ना, जैसे फेसबुक का API है, फेसबुक ऐप लोग API बोलते हैं। तो फेसबुक को सिर्फ हम लोग ब्राउजर के थ्रू से थोड़ी एक्सेस करते हैं, हम चाहे तो ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो API हो गया। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ API का, ऐसा AWS का भी API है। মানে অ্যাপকে কি API বলে? AWS का मतलब ऐप एप्लीकेशन বলতে পারো তুমি, বললে ভুল হবে না, বাট একটু আরো মিনিং আছে, ঠিক আছে, আরো কিছু অ্যাড অন আছে। क्लियर? सो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा? पहला तो रिक्वेस्ट में रहेगा कि कौन एक्सेस करना चाहता है, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कौन। एक्शन मतलब क्या करना चाहता है वो, S3 पैकेट को डिलीट करना चाहता है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्शन क्या है? ऐड करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, क्रिएट करना है, क्या करना चाहता है, ये रहेगा इन्फॉर्मेशन। रिसोर्स मतलब होता है क्या, किस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहता है, स्टोरेज को एक्सेस करना चाहता है, S3 को एक्सेस करना चाहता है, ये सब रिसोर्स हुआ जो AWS में है, इस सर्विस को हम लोग यूज करते हैं। ये भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये नहीं रहेगा। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना बोल के खत्म कर दिया, किस चीज का रिक्वेस्ट कर रही है, हमको क्या समझ में आएगा? कुछ तो कर रहा है। किस चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हो? आपके मन में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं इस सिस्टम को एक्सेस करूंगा, মানে পার্টিকুলার तो सिस्टम क्या है यहाँ पे? रिसोर्स, वो रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है। एक्सेस करूंगा और उसमें जो Clear? फाइल बना है उसे डिलीट करूंगा। इन्वायरमेंट, सो इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट मतलब किस तरह से, किस फॉर्मेट में आप एक्सेस करना चाहते हो, क्या AWS CLI के थ्रू से कर रहे हो, या फिर AWS कंसोल से करना चाहते हो, या फिर कोई API के थ्रू से करना चाहते हो, कैसे एक्सेस करना चाहते हो? इन्वायरमेंट क्या है और डेटा क्या है, क्या डेटा उसमें है जो एक्सेस करना चाहते हो, है ना। क्लियर? सो ये पूरा चीज को अगर आप समझोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका AWS का मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसका खुद का इसको बोलते हैं हमारा IAM, है ना, IAM का। ये मैं ओपन किया था, कहाँ गया? ऐसे ओपन करने के बाद माउस क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हो।
Savage. Savage replied that. Huh? So that is the scenario. हाँ? ये जो पूरा ये 6 है, ये 6 टर्म्स है जिसके बारे में यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया कि किस तरह से ये होता है. ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है. दीज आर द प्रिंसिपल्स. और ये आपका रिक्वेस्ट है, क्या करना चाहते हो आप, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये रिक्वेस्ट करने से पहले आपको इस जगह में आकर के रुकना है. रुकना है मतलब आपका ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा. आप लेजिटिमेट यूजर हो नहीं, आपको पासवर्ड पता है क्या, आप वही यूजर हो जिस यूजर को एक्सेस दिया गया है. तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे? AWS ask you enter your password, enter username and password, that is called authentication. ऑथेंटिकेशन भी चेक होगा कि नहीं होगा? Yes sir. उसके बाद क्या था? ऑथोराइजेशन. ऑथोराइजेशन के बारे में प्रीवियस डे भी डिस्कस किए थे. क्या होता है ऑथोराइजेशन? कि एक्सेस क्या क्या आपके पास है, आपको क्या क्या चीज एक्सेस करने का परमिशन है. सो दैट इज ऑथोराइजेशन. जैसे यहाँ पे कुछ चीजें करने का परमिशन है, कुछ नहीं है. ये भी इसमें टर्म्स में है, देखो. Yes. उसके बाद ये ऑथोराइजेशन किसके लिए है? रिसोर्स के लिए है कि कौन सा रिसोर्स को क्या कर सकते हो. जैसे मैं EC2 इंस्टेंस सिर्फ देख सकता हूँ, मैं क्रिएट नहीं कर सकता, तो मुझे ऑथोराइजेशन मिला EC2 इंस्टेंस का. EC2 इंस्टेंस मेरे लिए रिसोर्स है, लेकिन किस चीज का ऑथोराइजेशन है मेरे पास? सिर्फ देखने का. रीड ऑनली. वी कांट क्रिएट EC2 instance, we can't modify EC2 instance, we can't delete EC2 instance. So authorization मेरे को क्या मिला है? देखने का. और EC2 instance मेरे केस में क्या है? ये रिसोर्स है. क्लियर? हेलो. हेलो. सिद्धार्थ इस साइड सर. सिद्धार्थ, हाँ बोलो. हाँ सर, 355 का बैच. हाँ. तो सर बोल रहे थे कि मेरा तो 24th को सर एक एग्जाम है, आई गेस मॉक, रीमॉक हो रहा है दोबारा. तो सर वो मेरा सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज सर अभी एज आई एम वर्किंग राइट नाउ, और सर मेरा प्रोजेक्ट भी है सर. तो क्या सर करें? क्या करूँ? तुम क्या करो, ये तुम्हारा है, तुम डिसीजन लोगे ना, तुम क्या करोगे. सर हम पार्थो सर को बोले थे, तो पार्थो सर बोले कि आपको कॉल करके एक बार पूछ लेने के लिए क्या करें. तो हमसे पूछोगे क्या करें, तो हम बोलेंगे एग्जाम दे दो. सर वो एग्जाम देना तो सर पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि सर वो मेरा जो प्रोजेक्ट है सर वो तो सर आज से ही स्टार्ट है सर. आज मेरे को सर निकलना है रांची. हाँ, तो क्यों एग्जाम फॉर्म फिलअप क्यों किए? सर हम फॉर्म फिलअप सर वो तो सर पहला सर वो ये तो सर दोबारा जो री एग्जामिनेशन हो रहा है सर वो उसका होता है. हाँ, तो क्यों किए? नहीं करना चाहिए था. तुम लोगों को पार्थो सर डेट नहीं बताए 23-24 को एग्जाम है. हाँ सर 23-24 को तो तो फिर बताए थे सर. सब कुछ मालूम है, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या करें. अब सर क्या कर सकते हैं सर, आप बता दीजिए. क्या सर एग्जाम बाद में दे सकते हैं? हाँ, बाद में दे सकते हो. तुम जितने बार चाहो एग्जाम दे सकते हो. री एग्जाम फी देना और दे देना. ठीक है. और क्यों एग्जाम नहीं दे रहे उसके लिए तुमको एक मेल करना पड़ेगा. ईमेल सर करना आपको पड़ेगा. मेल करना पड़ेगा. हाँ, ये राजश्री चक्रवर्ती, rajshri@jetking.com और en.cs@jetking.com. ये दोनों मेल में मेल कर दो. रीजंस क्या रीजंस है? आपको मेल करना पड़ेगा. हाँ, कि एग्जाम नहीं दे पाओगे इसका. अच्छा ओके. ठीक है. ओके सर. ओके. ठीक है सर, बाय. अच्छा, तो ये यहाँ पे रिसोर्स है. क्लियर? जैसे यहाँ पे EC2 रिसोर्स है, IAM सर्विस रिसोर्स है, S3 रिसोर्स है. इस एग्जांपल से रिसोर्स का यहाँ पे एक्शन भी है. एक्शन ऑपरेशन देखो, यहाँ पे आप लिखे हो एक्शन ऑपरेशन, मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ कि क्या एक्शन कर सकते हो. आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, है ना. तो इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक्शन. एक्शन क्या ले सकते हो. तो ये 6 टर्म है जिसको आपको समझना है. ये 6 टर्म क्लियर है सबके लिए? Yes sir. Environment का कौन सा टर्म अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? तो environment को elaborate कीजिए.
इन्वायरमेंट मतलब जैसे अभी इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, क्लास का एनवायरनमेंट। क्लास का इन्वायरमेंट 24 डिग्री में एसी चल रहा है। नहीं वो तो है ना? समझ गया, इन AWS एक्चुअली। हाँ मैं AWS को ही बता रहा अब हूँ। रिलेट कर रहे दूसरे। जैसे इन्वायरमेंट अभी कितना बढ़िया है, यस अभी उस सोने का मूड में, अभी सो जाएगा कुछ देर बाद, सर नहीं ठंडा ठंडा वेदर है, चेयर पे बैठा है, एकदम नरम वाला चेयर है, इसका जैसा फीलिंग है। हाँ घर जैसा फीलिंग आ रहा है। नहीं सर मैं तो दैट इज इन्वायरमेंट ना। अभी लाइट ऑफ कर देंगे तो सो भी जाएगा, मैं इसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ कि वो सो जाए, दैट इज इन्वायरमेंट। तो इस तरह से AWS में यूजर जब लॉगिन करता है तो यूजर को आप किस तरह का इन्वायरमेंट देना चाहते हो, है ना? इन्वायरमेंट पानी पीने का टाइम। देने का ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है? जैसे एक ऑप्शन है कि मैं कंसोल दे दूं उसको, AWS कंसोल। जैसे यहाँ पे ये कंसोल है ना, आ गया ये कंसोल, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करके रखा हूँ देखो, और ये कंसोल है, ब्राउजर के थ्रू से एक्सेस कर सकता है यूजर। दूसरा क्या है? दूसरा वो CLI से एक्सेस कर सकता है, Those are environments. है ना? तीसरा क्या है? API है, API से भी एक्सेसটা করতে পারো। हाँ। Platforms. What environment you are using? Environment मतलब आपका प्लेटफॉर्म क्या है? Yes. Yes. जैसे आप एक फोल्डर विंडोज में बना सकते हो, लिनक्स में बना सकते हो। सो लिनक्स और विंडोज का एनवायरनमेंट है, Different environment में वर्क करता है ना? CLI से Linux में तो ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे सोते सोते फोल्डर बना सकते हो, ऐसे राइट क्लिक करोगे और ऐसे करके बन जाएगा फोल्डर। हाँ सर न्यू। पर लिनक्स में आपको ऐसे करके बैठना पड़ेगा, नहीं? हाँ सर CLI रहता है, अगर कमांड Okay. तो फिर से चलो तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये Request. आपका रिक्वेस्ट का जो भी है, रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन, इसके बारे में मैं बताया अभी पिक्चर दिखा करके, ऑथोराइजेशन और एक्शन के बारे में बताया, और रिसोर्स के बारे में बताया। फाइल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं, अच्छा बाकी कुछ और भी है जो यहाँ पे नोटेड नहीं है, मैं जब प्रैक्टिकल करूँगा एक करके मैं बताऊँगा कि क्या क्या और है जो इसमें लिस्टेड नहीं है। अच्छा, अब आते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल में। हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से आप यूजर बनाओगे, हाउ वी क्रिएट अ IAM यूजर। एकदम बेसिक में आते हैं कि यूजर कैसे बनाते हैं, एकदम आसान है। जैसे आप सिस्टम में यूजर बनाते हो ना, How to follow? विंडोज में यूजर बनाते हो, उस तरह से यहाँ पे भी यूजर बना सकते हो। यहाँ पे एकदम सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे सारा कुछ कंसोल के थ्रू से आप माउस क्लिक से कर सकते हो। बस आपको सिर्फ पढ़ना है क्या क्या लिखा है वहाँ पे, ठीक है? तो फर्स्ट यूजर हम लोग आज बनाने वाले हैं AWS पे, IAM यूजर, हाउ टू क्रिएट IAM यूजर। ओके, तो मैं यहाँ पे यूजर एक बनाया था सुबह में, बट डिलीट कर दिया हूँ शायद, हाँ डिलीट हो गया। तो आपको यूजर बनाने के लिए कहाँ पे जाना है? सर्च भी कर सकते हो, IAM ऑप्शन दिया। ठीक है, सर्च कर सकते हो। अब मैं IAM ओपन किया इसलिए यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड में IAM आ रहा है, बट आपके अकाउंट में ऐसा नहीं आएगा क्योंकि आप IAM ओपन नहीं किए हो क्या एक बार? तो आपको लॉग आउट करके तो यहाँ पे लॉग आउट लॉग इन जितने बार भी करो यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है? रिसेंटली विजिटेड हिस्ट्री স্যার আমরা তো তার মানে কখনো বলি তাহলে আসবে কি করে? है यही तो मजा है ऊपर। सर वो तो लॉग इन करते वक्त ही तो दिखता है। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, IAM बोल के आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको डिटेल्स जानना IAM कहाँ पे होता है एक्चुअली, बिकॉज यू आर एडमिन ऑफ AWS, तो आपको सभी कुछ जानना है। यस सर तो आपको कहाँ पे जाना है? ये कितना सारा डॉट है? 6 है ना? 9 डॉट्स है। अच्छा 9 डॉट्स यहाँ पे क्लिक करोगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे। नीचे में आने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। इस टैब के अंदर आपको मिलेगा क्या? AWS ठीक है, ये यही तो सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, ठीक है? क्या बात है, ये देखिए देख रहे थे
compliance অন্ধ হয়ে গেছে। কান চশমাটা দিয়ে দে তো বাবা আমাদের বলকে না চুপ করতে আমি चश्मा उतार के लिख दी ये भी तो एक मतलब टैलेंट है ना, बिना देखे लिख रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। আরে আমার চশমা পরে ठीक है, सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में आप आओगे तो आपको मिलेगा IAM। तो IAM में क्लिक करो, ये IAM आपका ओपन हो गया। ये IAM का डैशबोर्ड है। आप अगर इधर ध्यान दोगे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ बिकॉज ये स्क्रीन थोड़ा सा बाहर चला जाता है। तो आपको लेफ्ट साइड में इसका सारा ऑप्शंस डैशबोर्ड बोल के लिखा रहेगा, जहाँ पे सारा ऑप्शंस आपको मिलेगा। एक आपका यहाँ पे लिखा क्या है, ये लिखा है एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सेस मैनेजमेंट में देखो यहाँ पे ग्रुप्स है, यूजर्स है, रोल्स है, पॉलिसीज है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स है, अकाउंट सेटिंग्स है। ये आपको 1 2 3 4 5 6 चीज आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। नया चीज ऐड किया गया है, सो दैट थिंग इज न्यूली एडेड इन AWS, दैट इज रूट एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अकाउंट मैनेजमेंट आ गया। क्लियर? ठीक है, आप एक एक करके अगर चाहते हो कि नहीं मैं ग्रुप में जाना चाहता हूँ, तो ग्रुप में क्लिक करोगे, आपका ग्रुप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी ग्रुप क्रिएट में नहीं किया हुआ। यूजर्स में जाना चाहते हो, यूजर्स में क्लिक करो, यूजर आ जाएगा। ठीक है, रोल्स में जाना चाहते हो, रोल्स में क्लिक करो, रोल्स आ जाएगा, है ना। देखो बाय डिफॉल्ट इसमें बहुत सारा रोल्स बना हुआ है। पॉलिसीज में क्लिक करो, यहाँ पे पॉलिसीज भी ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो कंसोल कैसे यूज करना है, क्लियर हो गया? यहाँ भी बहुत सारा पॉलिसीज। अब आते हैं डैशबोर्ड में। तो इस डैशबोर्ड में मेरे यहाँ पे दोनों ऑप्शन ग्रीन दिख रहा है। क्यों ग्रीन दिख रहा है? आपके केस में ग्रीन ना भी हो, वो पार्ट पे कंप्लीट हो गया है। हाँ, क्योंकि मैं MFA एनेबल करके रखता हूँ। सो MFA इज मैंडेटरी, है ना, ये बोल रहा है। अगर MFA अगर एनेबल नहीं किया तो आपको वहाँ पे ग्रीन नहीं आएगा। तो मेरे अकाउंट में MFA एनेबल किया हुआ है रूट अकाउंट के लिए। मेरा भी ग्रीन है। ठीक है, आपका भी ग्रीन होगा ना। अभी सीखते हैं हम लोग यूजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो यूजर कैसे बनाते हैं, उससे पहले आप ये राइट साइड में देखो AWS अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल्स दिख रहा है ना? ये अकाउंट आईडी है, और ये अकाउंट आईडी जो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, ये जो नीचे में URL है उसमें भी सेम ही दिख रहा है। मतलब यूजर जब क्रिएट होगा, यूजर जब लॉगिन करेगा तो वो इस URL में लॉगिन करेगा। मतलब यूजर को आपको URL भी भेजना है साथ में। सर उसको एडिट कर सकते हैं सर? उसको एडिट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सो वी कैन कस्टमाइज दिस लिंक। आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे मैं अपना कुछ डालूं, तो आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे अलाइज। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया KK356, तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, अभी नंबर नहीं आ रहा है। नहीं सर, ये सही है, लाइस करके भेजना। तो ये आप इस तरह से क्रिएट कर दिए ना। अभी नंबर, आपका जो नंबर यहाँ पे ये था, ये दिख रहा था ना यहाँ पे URL में। अभी यहाँ पे आप जो डाले हो एलाइस, उसको एलियस बोलते हैं, वो यहाँ पे देखो चेंज हो गया। और इसको आप कॉपी करके अगर ओपन करोगे, जैसे मैं दूसरा ब्राउजर में ओपन करता हूँ, तो इस ब्राउजर में ओपन करते हैं तो ये आपका ये कंसोल ओपन होगा। बट यहाँ पे आपको जो IAM यूजर होगा वो लॉगिन करेगा। कौन लॉगिन करेगा? IAM यूजर। तो इस लिंक को ओपन करते ही आपका अकाउंट आईडी में नंबर नहीं आ रहा है। क्लियर? Am I clear for everyone? Yes sir. ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग यूजर बनाते हैं पहले। सर वो क्विक लिंक क्या है? क्विक लिंक्स ये सब तुम अगर जानना चाहते हो कि ये क्या है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन रीड ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, सब चीज का इंफॉर्मेशन। आप मैं ये वाला जो ओपन किया था, ये कहाँ से ओपन किया था? मैं यहाँ पे IAM डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आपको अगर पढ़ना है, सीखना है, जानना है क्या चेंजेस अभी हुआ है, तो आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। ना मैं अब यूजर बनाना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? यूजर्स में।
तो चलो सीखते हैं यूजर कैसे बनाते हैं। तो यूजर्स में आना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट यूजर। ओके, सो क्रिएट यूजर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा यूजर का नाम क्या है। बोलो बोल अजय भैया। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, यूजर नाम यूजर नेम डिफाइन करोगे तो ये सब कुछ कंडीशंस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये यूजर बनाने से पहले थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि यूजर जब बनता है तो किसी रीजन में नहीं बनता या किसी एजेड में नहीं बनता, ये ग्लोबली बनता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, अभी कोई रीजन नहीं है। ऐसा वहाँ दिखा भी रहे थे कि सर्वर डिफरेंट एजेड मल्टीपल सर्वर आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्लोबली बनेगा, मतलब ये किसी भी रीजन को एक्सेस कर सकता है यूजर बना रहा। ओके, यूजर नेम मैं डाल दिया, ठीक। पिंकी, अभी ये पिंकी यूजर अगर पहले से यूज हो चुका है तो ये मेरे को यहाँ पे बताया कि दैट यूजर इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं, बट ठीक है, हो गया। अभी प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। आप क्या यूजर को देना चाहते हो AWS कंसोल? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक हो गया आइडेंटिटी सेंटर, ये फिलहाल मैं नहीं यूज करूंगा, फिलहाल के लिए मैं यूज करूंगा अभी IAM। तो मैं फिलहाल सिंपल एक IAM यूजर बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर। अब यूजर बनाने के टाइम में आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, और पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लेक्स। पासवर्ड आप दो तरह से यहाँ पे साइन कर सकते हो, एक हो सकता है AWS खुद पासवर्ड जनरेट कर देगा, अगर AWS से पासवर्ड खुद जनरेट कराना, ऑटोमेटिक जनरेट कराना तो ऑटो जनरेट पासवर्ड को चेक करेंगे। अगर मुझे मैनुअली पासवर्ड सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, कस्टम पासवर्ड में जाऊँगा। यूजर नेम के बाद पासवर्ड करेंगे ना? नहीं, उसके बाद आपको बताना है कि यूजर को क्या इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे चेक किया ना, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। ये जब चेक नहीं करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, ये चेक करेंगे तभी ना आएगा। आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर, ठीक है। उसके बाद हम कस्टम पासवर्ड में गए और पासवर्ड सेट किया, पासवर्ड डाल दिया, सेट पी पासवर्ड 1 2 3, और यहाँ पे पासवर्ड देखना चाहते हो तो शो पासवर्ड में क्लिक करोगे, दिख जाएगा आपको पासवर्ड। पासवर्ड का कुछ कंडीशंस है कि पासवर्ड ये होना चाहिए कम से कम, इसका पासवर्ड पॉलिसी में यही डिफाइन है कि मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, इसमें अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कैप्स ऑन होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगा तभी पासवर्ड आपका लेगा। आप सिंपल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 नहीं दे सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 कैरेक्टर का देने बोला, दे दिया, नहीं लेगा पासवर्ड। मैं जब बनाऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है, यूजर्स मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। इसका मतलब क्या होता है, तो ये यूजर को पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, चेक कर देगा यूजर का पासवर्ड, यूजर के पास ही रहेगा। अब जैसे जो कंपनियों का आपका जो ATM का पिन नंबर है ये आप ही के पास है या बैंक के पास भी है? सर मेरा जो ऑफिस पे सर पार्टनर आईडी है सर, है ना, नहीं है ना? हाँ सर, बैंक के सर्वर में हो सकता है, बट आप ही के पास किसी इंसान के पास नहीं। सेम है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर किसी यूजर का पासवर्ड नहीं पता होना चाहिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर भी ह्यूमन बीइंग है ना, उसके अंदर भी लालच हो सकता है। तो पासवर्ड मस्ट भी चेंज करना चाहिए मुझे, क्योंकि यूजर खुद अपना पासवर्ड सेट करे। हाँ, मैं अगर चाहूँ तो बाद में उसको रीसेट भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ए एडमिन। हाँ, जो मेरे को जो आईडी दिया था कंपनी, उसमें सर जैसे लॉगिन करते थे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आता था, क्योंकि ये ऑप्शन को चेक करके रखा था वो लोग। यस सर, ये ऑप्शन चेक करने से क्या होगा, यूजर को चेंज करना ही पड़ेगा पासवर्ड जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे। तो मैं भी चेक कर दिया और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के टाइम में यहाँ पे
यहाँ पे पासवर्ड निच्छना क्या ना निच्छना Because of that, this category. हाँ, क्योंकि मैं पासवर्ड को काफ़ी इजी पासवर्ड डाला, तो मैं पासवर्ड थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ। मने থাকবে তো পাসওয়ার্ডটা? अभी मैं नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आप बोल रहे हैं क्या सेट परमिशंस, यूजर क्या क्या एक्शन कर सकता है, एक्शन वही वाला टर्म एक्शन क्या क्या कर सकता है, तो ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि आप अगर कोई ग्रुप बना के रखे हो और ग्रुप को जो परमिशन आप दिए हो, यूजर को अगर उस ग्रुप में मेंबर बना देंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को सेम परमिशन मिलेगा। तो फिलहाल मैं ग्रुप बनाया नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। कॉपी परमिशन, कॉपी परमिशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये भी फीचर है कि किसी यूजर का परमिशन को कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप 10 यूजर को यहाँ पे सेम तरह का परमिशन दिए हो और 11 नंबर यूजर भी आप चाहते हो कि उसको भी सेम परमिशन मिले, तो आप उस यूजर का परमिशन को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो आपको कॉपी परमिशन करना है और यूजर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं यूजर को बनाया नहीं अभी तक, इसलिए यहाँ पे यूजर दिख नहीं रहा है, अगर बना दो तो यहाँ पर दिखता। ये भी नहीं किया। अभी थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है, हाँ, तो फर्स्ट केस में तो मुझे यही करना पड़ेगा बिकॉज दोनों में से कुछ मेरे पास है। तो अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, आप डायरेक्टली यूजर के ऊपर पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि यूजर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इतना सारा पॉलिसी यहाँ पे है, दिख रहा है, तो आप कोई भी यहाँ से सर्च करके यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी इसको यूजर को कुछ भी परमिशन नहीं देता, कि मैं चलो यूजर को बोल दिया कि चलो वो EC2 इंस्टेंस को रीड कर सकता है, बस इतना ही करते हैं ना। ये फुल एक्सेस है और मैं इसको क्या कर दिया, रीड ऑनली एक्सेस कर दिया। ठीक है, मैंने कैसे किया ये, मैं यहाँ पे लिखा EC2 क्योंकि यहाँ पे कितना सारा पॉलिसी है, तो ढूंढते रह जाओगे। तो आपको अगर EC2 के लिए कुछ पॉलिसी सर्च करना है तो आप सिर्फ EC2 लिखो, ठीक है, तो वो आ जाएगा, EC2 का ही सब आएगा। तो यहाँ पे मैं रीड ओनली को चेक कर दिया, तो इसको मैं अगर चेक करता हूँ तो क्या होगा, ओनली रीड कर सकता है, उसके पास EC2 क्रिएट कर पाएगा क्या? नो सर। तो लोग वो भी चेक करेंगे क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता। कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मेरे को आ रहा है डिटेल्स कि यूजर का नाम क्या है, पिंकी है, कस्टम पासवर्ड मैं सेट किया हूँ। हाँ, এই তো পলিসি এখানে আসছে কি আমি একটা পলিসি দিয়েছি রিড অনলি, আরেকটা দিয়েছি কি चेंज पासवर्ड। देखो ये ध्यान में रखना है, रूट यूजर वो यूजर होता है जिसके पास बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिट अलाउ होता है। एक्सप्लिसिट अलाउ मतलब वो सब कुछ कर सकता है। रूट यूजर वो यूजर होता है जो सिस्टम में AWS अकाउंट में सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग ही कैन डू जब अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो। लेकिन जब आप IAM यूजर बनाते हो तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट डिनाई होता है। आप जब तक परमिशन नहीं दोगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या परमिशन दिया उसको, दो ही परमिशन दिया, बाकी कुछ कर पाएगा क्या वो? तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिनाई है उसके लिए सब बाय डिफॉल्ट। क्लियर? इज इट क्लियर? तो IAM यूजर चेंज पासवर्ड का ये पॉलिसी देखो ऑटोमेटिकली आ गया इसके पास। क्यों आ गया? क्योंकि मैं वो ऑप्शन चेक किया। ओके, अभी मैं इसको क्रिएट कर दिया। अभी चेक करते हैं कि यूजर सही में क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। क्रिएट होने के बाद ना आपसे बोलेगा कि आपको अगर देखना है उसका URL क्या होगा। मैं जो URL यहाँ पे देख पा रहा हूँ उसी URL से यूजर लॉगिन करेगा। मैं कस्टमाइज किया था URL को, याद है 356 डाला था, वही आ रहा है। और यूजर नेम पिंकी है और पासवर्ड है ना। आप अगर चाहो तो इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, कर लेते हैं ना। तुम इतना शक क्यों करते हो? कर लेते हैं ये आपको डाउनलोड करके यूजर को भेज सकते हो कि ये आपका यूजर आईडी है, ये आपका पासवर्ड है और ये लॉगिन का आपका URL है जहाँ से आप लॉगिन करोगे।
ठीक है, यूजर को सेंड करना होगा। क्लियर? नहीं तो यूजर को तो याद नहीं रहेगा इतना कुछ। हो गया? अभी मैं इसको मिनिमाइज कर दिया, मेरा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, पिंकी से लॉगिन करके देखता हूँ लॉगिन होता है नहीं। ठीक है, अभी आई एम यूजर कौन है? पिंकी। टेस्ट करते हैं ना, पिंकी पासवर्ड डालते हैं, पिंकी अरे नहीं पासवर्ड नहीं, ये वाला पासवर्ड है ना, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, तो ये पासवर्ड है। अब ये साइन इन करेगी तो उसको क्या बोलेगा, पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, ऐसा ही होना चाहिए। अभी अकाउंट आईडी नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, पिंकी का है। अभी ये ओल्ड पासवर्ड ही डालना पड़ेगा पिंकी को, और यहाँ पिंकी को नया पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं डाल दिया cp@123, कंफर्म पासवर्ड भी सेम डाल दिया। अभी आई एम यूजर पिंकी क्रिएट हो गया, कंटिन्यू कर दिया। अभी पिंकी अपने Amazon में लॉगिन, कंसोल में लॉगिन कर दिया, बट वो कुछ कर पाएगी क्या, चलो देखते हैं। मैं एक बार चलता हूँ स्टोरेज में सबसे पहले, और मैं चलता हूँ S3 में। वो क्या S3 में कुछ कर सकती है? अरे वाह, कर तो सकती है, बोल रहे हैं। अरे ठीक है, डन हो गया। बकेट का नाम डाल दिया पिंकी बकेट। और ACL को मैं इनेबल कर दिया और ब्लॉक पब्लिक कर दिया। अभी क्रिएट करते हैं और देखते हैं क्रिएट होता है नहीं। अच्छा, इसको टर्न ऑन करना है, ठीक है, कर दिया। और क्रिएट करते हैं ना, ये बोल रहा है कि पहले से है। क्रिएट करते हैं। अभी क्या बोल रहा है, अभी मैसेज कुछ और आया है, ये बोल रहा है फेल टू क्रिएट बकेट। क्रिएट बकेट परमिशन इज रिक्वायर्ड, परमिशन नहीं तो कैसे? ठीक है, क्योंकि उसको S3 बकेट क्रिएट करने का परमिशन हम लोग नहीं दी। ऑब्जेक्ट राइटर। और एक देखते हैं हम लोग दूसरा वाला प्रैक्टिकल, ये जो है EC2। तो EC2 कहाँ पे होता है, कंप्यूट में होता है EC2। EC2 में बना के रखा नहीं हूँ। अभी पिंकी अगर चाहे तो कोई भी रीजन में आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो रीजन चूज नहीं कर सकती। मैं इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कौन सा रीजन में आ सकती है, नहीं आ सकती, वो बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। नॉर्थ वर्जीनिया में चलते हैं। ये पिंकी अपने अकाउंट से लॉगिन की है और वही सारा काम कर रही है, दिख रहा है। अभी लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हैं, ना? नो सर, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैं उसको पावर नहीं दिया हूँ। सब डिनाइड हो जाएगा आपके। वो सिर्फ देख सकती है। अभी ये AWS का ही, हाँ AWS का ही लेते हैं। चलो T2 माइक्रो की पेयर में, चलो जरूरत नहीं की पेयर का, मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहता हूँ। लॉन्च करना है, क्या बोल रहे हैं? तो ये सिक्योरिटी का इशू आ रहा है कि उसको एक्सेस नहीं है, क्या करना है वो कर लेना तुम खुद से। ठीक है, ये नहीं है, उसके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है, जिसके वजह से वो नहीं कर पा रही है। तो अगर आप डैशबोर्ड देखोगे, वो देख सकती है ना, देख सकती है क्या क्या है नहीं है। ठीक है, अभी मैं पिंकी को ये एक्सेस नहीं दिया, जिसके वजह से वो नहीं कर पा रही है। अभी मैं अगर एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दूंगा? ये मेरा पिंकी यूजर है, मैं चाहता हूँ कि पिंकी को क्या मिले, एक्सेस मिले। क्या मिले एक्सेस? कि वो EC2 इंस्टेंस क्रिएट भी कर पाए, डिलीट भी कर पाए, मॉडिफाई, हंस रही है। S3 पोरे देखो। तो क्या करना है आपको, पिंकी यूजर में क्लिक करना है, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड परमिशन, फिलहाल 2 ही परमिशन। मैं यहाँ पे ऐड परमिशन में आता हूँ और उसको अटैच पॉलिसी में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ EC2 और इसको मैं देता हूँ फुल एक्सेस, कि वो
कर पाए EC2 का सारा काम, है ना तैना EC2 का कर देना, ठीक है, और ये मैं क्रिएट कर दिया। M5 कर देना EC2 जब फुल एक्सेस मिला है। क्लियर? अभी मैं इसको कर दिया क्रिएट, और मैं अगर यूजर में आता हूँ और इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अभी ठीक है, दिक्कत नहीं है, हो गया, अभी क्रिएट हो गया, इनेबल है। अभी मैं दोबारा से पिंकी में चलता हूँ और दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा 10-15 सेकेंड टाइम लगता है थोड़ा सा अपडेट होने में, तो मैं वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ और इंस्टेंस में चलते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, दोबारा से इंस्टेंस का नाम डाल देते हैं, ये पिंकी का सर्वर बन रहा है, पिंक सर्वर, और की पेयर फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि वो लॉन्च कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। लेट्स टेस्ट इट। हो गया सो वो लॉन्च कर पा रही है इंस्टेंसेस, क्लियर? अगर वो चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकती है कि नहीं कर सकती, फुल एक्सेस है EC2 इंस्टेंस में, कर देनी तो मेरा भी लिंक आएगा। ठीक है, हो गया, और ये शट डाउन भी हो रहा है और ये कुछ देर बाद ही टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो ये सब कुछ कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस में। अभी सवाल ये है कि EC2 इंस्टेंस में कर सकती है, दूसरी जगह कर सकती है क्या? सर नहीं होगा। अभी चलते हैं S3 में। S3 का परमिशन उसके पास नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, है ना? अभी मैं अगर क्रिएट बकेट में क्लिक करता हूँ और वापस जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया बड़ा सा नाम और मैं क्रिएट कर दिया बकेट, तो ये बकेट क्रिएट नहीं करने देना चाहिए उसको। यस, क्लियर? ये क्लियर हो गया सबके लिए? अब आते और भी पार्ट्स जो है, आपको किसी यूजर को अगर ग्रुप का परमिशन देना है तो यहाँ से आप ग्रुप का मेंबर बना सकते हो, ऐड यूजर्स टू ग्रुप, होना तो चाहिए। इसके बाद है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। आप अगर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाओगे ना, यहाँ पे आप अगर यूजर को बोलते हो कि यूजर को MFA करना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ से MFA असाइन करवा सकते हो यूजर को, क्लियर? अगर यूजर को देना है प्रोग्रामेटिक एक्सेस, तो आप एक्सेस की और सिक्योरिटी की यहाँ से क्या करोगे, क्रिएट कर सकते हो। बट एट ए टाइम एक ही बार क्रिएट होगा और उसको आप एक ही बार देख पाओगे। एक बार क्रिएट हो गया, दोबारा उसको आप नहीं देख सकते। दोबारा देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। आपको अगर नहीं देख पाए, नहीं इसको कहीं कॉपी किए, तो आपको डिलीट करके वापस नए से क्रिएट करना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा ऑप्शन अभी तक नहीं है। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लास्ट एक्सेस। तो लास्ट एक्सेस में आप देख सकते हो कि यूजर जो जो किया है एक्टिविटी और उसको किया गया अलाउ था एक्सेस करने का, वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यूजर क्या क्या कहाँ पे एक्सेस किया गया है, क्या किया गया है, कब किया है, उसका भी ट्रैकिंग यहाँ पे रखता है अपने पास, है ना? क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? URL टैब मिले तो, हाँ URL मिलेगा तब ना। अच्छा, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है? अब सवाल एक ये है कि आप अगर यूजर का नाम को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू चेंज द यूजर पिंकी टू निक्की करना है, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बड़ा डिनाई। नो, वी कांट डू यूजिंग कंसोल। आप रूट यूजर हो फिर भी आप नहीं कर सकते।
देखो यहाँ पे कहीं पे भी चेंज करने का ऑप्शन है नहीं आ रहा। पिंकी मैम देख रहे थे, क्लिक करके भी नहीं आया। नहीं आ रहा, लेकिन आपको सही में चेंज करना है तो कैसे करो? कंसोल से होगा ही नहीं, तो मैंने पहले ही बोल दिया। हम बोल रहे थे जहाँ हम लोग ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड करो वहाँ होगा। वो सब करा ही देगा उसी से। यही बना देगा। तो चेंज करना है मुझे, चेंज सही में करना है तो आपको, आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू लाइक चेंज द यूजर नेम यूजिंग AWS CLI। आपको API या CLI के थ्रू से ही चेंज कर पाओगे, आप ग्राफिकली नहीं कर पाओगे, आपको कमांड से करना पड़ेगा। कमांड लाइन में जाके नहीं, बताने के लिए सिर्फ बोला। अगर आपको कमांड लिखना है तो मैं ये भी ओपन करके रखा हूँ यहाँ पे। क्रेडेंशियल में मिलेगा, मतलब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में। हाँ, सो ये आपका कमांड है, Change the IAM username. ठीक है। जैसे यहाँ पे टास्क ये था, ये पूरा को पूरा ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। Zoom करके तो यहाँ पे टास्क ये था कि यूजर को चेंज करना है, यूजर नाम बॉब है, उसको चेंज करके क्या करना है, रॉबर्ट। ठीक है, तो आपको कमांड क्या डालना है, लिखना है AWS IAM अपडेट यूजर नेम बॉब, उसके बाद न्यू यूजर नेम रॉबर्ट। ये चेंज होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सब कुछ पॉलिसीज जो भी डाला हुआ है यूजर के ऊपर वही रहेगा, जो भी आप परमिशंस डाले वही रहेगा, जो भी रोल्स दिए हो सेम ही रहेगा, सिर्फ नाम आपका बदल जाएगा। लेकिन आप ग्राफिकली नहीं कर सकते, AWS कंसोल से नहीं कर सकते, आपको प्रोग्रामेटिक कंसोल, प्रोग्रामेटिक एसेस से करना पड़ेगा। Is it clear for everyone? So IAM में हम लोग अभी सिर्फ यूजर बनाना सीखे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे ग्रुप कैसे करते हैं क्रिएट, रोल कैसे असाइन करते हैं, क्या क्या परमिशंस है जो हम लोग सेट कर सकते हैं, पासवर्ड पॉलिसी कैसे चेंज करते हैं। पासवर्ड पॉलिसी जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी कुछ है, मैं अगर इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, वो कैसे चेंज करते हैं। हाँ, ठीक है। क्लास हो गया इसके बाद। हेलो दीदी, वो क्लास हो जाएगा ना? क्लास नहीं तो सर ये जो कमांड है सर, ये AWS CLI जो हम लोग किए थे प्रैक्टिकल, इसके वही करना पड़ेगा। कर लेना खुद। काउच खिला देना। नहीं करके देखना, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बता दो। सर सिलेबस में है नहीं, मैं ऐसे ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछ लूँ, इसीलिए तो बोले सर, ये पूछेगा भी नहीं कोई कि यूजर का नाम चेंज करना है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में सब जानना पड़ेगा। अरे बाबा, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से तुम्हारा सिर्फ ये थोड़ी जानना है, तुमको तो ये भी जानना है कि AWS का ये सिर्फ एंट्री लेवल है, एसोसिएट लेवल, इसके बाद ऊपर का भी सर्टिफिकेशन है। हाँ, तो एसोसिएट लेवल में प्रोफेसर का चीज तुम कैसे सीखो? हाँ, उसके लिए अलग पैसा लगेगा। पहले एसोसिएट लेवल का ग्लोबली क्लियर करना होगा। हाँ, ये सीख लेते हैं सर, MCQ देंगे सर, किस चीज का MCQ? ग्लोबल एग्जाम का। दे देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। अगर ग्रुप बनाते थे, ग्रुप का नाम भी ऐसे ही चेंज करना होगा। देखो ये वाला ना, ये पहले CLI से भी नहीं होगा, अभी लोग चेंज किया है AWS, ठीक है। अभी इसका भी डॉक्यूमेंटेशन मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग बहुत जल्दी चेंज कर लेता है।
हो सकता है कि मैं कुछ बोल दूं और फिर उसका वो सही में ऐसा नहीं है, वो चेंज हो गया है, तो फिर मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो मैं 3 महीने पहले का ये जो वर्ड फाइल तुम लोग लिख रहे हो 3 महीने पहले का है। चेंज होता रहता है ना। एनएसडीसी फॉर्म नहीं होगा सर हम लोग का। हैं? बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले का है, बदलने का तो पढ़ना बेकार है। नहीं वो सब तो फीचर्स है, वो नहीं थोड़ा करना। बहुत चेंज होगा सर, पूरा थोड़ी स्टेप्स बदलता है, हम लोग का कंसोल बदलता है, फीचर्स तो वही रहेगा। पड़ेगा। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एनएसडीसी में आपको कब होता है सर? एवरी टाइम कभी भी दे सकते हो, पैसा रहने से ही हुआ। एनएसडीसी नेशनल स्किल पैसा चाहिए और तुम्हारा आईडी प्रूफ चाहिए। ठीक है सर। सर्विस करवानी देंगे। एनएसडीसी का डिफरेंट फ्रॉम कंबल कुछ नहीं सर एनएसडीसी वाला फॉर्म अच्छा एनएसडीसी का कर लेते हैं, अच्छा डिलीट कर देते हैं यूजर को, ठीक है। अच्छा यूजर रहने से बिलिंग नहीं होगा कुछ भी, तो इसको टेंशन नहीं लेना है। अब यूजर अगर नहीं भी रहेगा, डिलीट नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूजर को अगर पासवर्ड नहीं दिए यूज नहीं कर लेता है। हाँ हम भी तो खुद से अपने फोन में किए क्या ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनएसडीसी कर लेते हैं। जो ऑनलाइन में हो थोड़ा सा रहो, सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ करके। बेकार में उसका क्रेडिट डेटा